Good evening everyone, good evening to all of you. Most welcome to your own channel Right On. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 24। ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਓਵਰऑल ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟ MCQs ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸਿਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ। ਬਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ 5 PM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 100 MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈंने ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈंने ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈंने ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਥੰਬਨੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 24 ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ +1 +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਨਾਈਟ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇਖੋ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲਸ ਫਿਨਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਨਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਨਾਈਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਲਿਮਿਟਸ ਆਰ ਫਿਨਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਨਾਈਟ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਲਿਮਿਟ is infinite। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਨਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਨਾਈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਨਾਈਟ ਨੇ। ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਓਪਨ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਓਪਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਓਪਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और ये मेरे को की है, ये मेरे को सैमी ओपन है, जो एक साइड तो ओपन है और दूसरी साइड तो क्लोज है। इसका मीनिंग तो सबनों ऑलरेडी पता है, क्योंकि बहुत ही बच्चों वाली गल है। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब यही है कि x, ठीक है जी, x किहदे विच बिलोंग करता है? रियल नंबर दे विच बिलोंग करता है। सच दैट कहते जी x की वैल्यू है वो 2 तो वड्डी होनी चाहिए है और 3 तो की होनी चाहिए है, छोटी होनी चाहिए है। मतलब ना तो इस 2 इनकलूड होएगा, ना ही इस 3 इनकलूड होएगा, ठीक है। सिमिलरली जो आप इसनों डिफाइन करांगे तो आप कहांगे कि x मेरे को किहदे विच बिलोंग करता है? रियल नंबर दे विच बिलोंग करता है। सच दैट मेरे को जिहड़ी x की वैल्यू है वो 2 तो लैके 3 तक होनी चाहिए है। मतलब इत्थे नाल इक्वलिटी नूं भी रिप्रजेंट किया जा रहा है। मतलब x की वैल्यू 2 तो 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, बट 2 और 3 भी हो सकती है। 2 and 3 आर ऑल्सो इनकलूडेड, ठीक है जी। अगर आप गल करिए सैमी की, तो सैमी नूं आपां किवें कह सकते हैं? इसनों मैं किद्दां रिप्रजेंट करांगी? इसनों मैं रिप्रजेंट करांगी कि x मेरे को की है, रियल नंबर दे विच बिलोंग करता है। सच दैट मेरे को जिहड़ी x की वैल्यू है वो की है 2 तो लैस दैन ग्रेटर दैन होएगी, और लैस दैन मतलब की है इक्वालिटी का नाल साइन लैके चल रहा है। क्यों? 3 तो क्लोज है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि 2 इनकलूड नहीं हैगा, बट 3 इनकलूड हैगा। अगर तुसीं इसनों लिखण दी कोशिश करोगे तो ये किद्दां लिखिया जाएगा? x किहदे विच बिलोंग करदा है? रियल नंबर दे विच बिलोंग करदा है। सच दैट 2 लैस दैन इक्वल टू x लैस दैन 3, मतलब 2 इनकलूडेड हैगा, 3 नहीं हैगा, ठीक है। तो ये आपां नूं ऑलरेडी पता ने वैल्यूज, ठीक है। तो इसनों एक होर तरीका हुंदा रिप्रजेंट करन दा, नंबर लाइन। नंबर लाइन के उपर रिप्रजेंट किया जा सकता है। लैट ये मेरे को 2 है, ये मेरे को 3 है, ठीक है। पहले तो सारे दी नंबर लाइन बना लेने, ठीक है। ये मेरे को 2 है, ये मेरे को 3 है। इत्थे मैं 2 बना रही हूँ, एक फर्स्ट ली, एक सैकेंड ली, ठीक है। 2 and 3 क्लीयर है। हुण देखो ध्यान नाल, इहदे विच आपां की करदे हां, इहदे विच आपां 2 ते 3 मतलब आपां इसनूं राउंड ब्रैकेट्स नाल ले लैंदे हां, ठीक है। बट इसनूं फिल नहीं करते। मतलब मेरे को किहड़ियां वैल्यूज आउणगियां? मेरे को 2 तो लैके 3 तक वैल्यूज आउणगियां, बट 2 and 3 इनकलूडेड नहीं हैगा। उसनूं रिप्रजेंट करन दा तरीका एक ये भी है। दूसरा तरीका की है? दूसरे दे विच देखो, इहदे विच भी हैगी तो सेम थिंग चीज़ है, ठीक है। बट इन्हां नूं फिल कर दिता जांदा है, सर्कल्स नूं फिल कर दिता जांदा है, डार्क कर दिता जांदा है। द रीजन ये है कि 2 and 3 नूं भी इनकलूड किया गया, मतलब इस चीज़ नूं एक्सप्रैस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का जेकर तुसीं बनाओगे, दिस इज माई फर्स्ट का जेकर तुसीं बनाओगे, कहते 2 इनकलूडेड नहीं हैगा, बट 3 इनकलूडेड हैगा। तो जेड़ा नंबर इनकलूडेड हैगा उसनूं फिल करता। सिमिलरली सैकेंड दे विच अपने कोल की है? 2 इनकलूडेड है, बट 3 इनकलूडेड नहीं हैगा। तो इदां रिप्रजेंट किया जाता, जो आपां नूं बहुत ही चंगी तरह ऑलरेडी क्लीयर है, ठीक है। तो अपने कोल की हुंदा? अपने कोल इंटरवल्स 2 टाइप के हुंदे हैं, फिनाइट एंड इनफिनाइट। फिनाइट दे विच 3 कैटेगरीज आ जांदियां ने। ओपन सैट हुंदे हैं, ओपन इंटरवल हुंदे हैं, क्लोज इंटरवल हुंदे हैं, जो सैमी ओपन इंटरवल हुंदे हैं, जिसनूं सैमी क्लोज भी बोलिया जाता है। हुण आपां डिस्कस कर लैंदे आ इनफिनाइट बारे, कि जिहड़े इनफिनाइट इंटरवल्स हुंदे ने उन्हां नूं डिस्कस कर लैंदे आ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफिनाइट इंटरवल्स। इनफिनाइट इंटरवल्स, ठीक है जी। इनफिनाइट भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आंदा आपां नूं सब नूं, ठीक है। किवें है? तो इनफिनाइट दे विच देखो तुहाडे कोल 2 कैटेगरीज बनदियां ने तुहाडे इंटरवल दियां। किहड़ियां-किहड़ियां 2 बनदियां ने जी? हो सकता है दोनों ही की होण, दोनों ही लिमिट्स तुहाडीआं की होण, इनफिनाइट होण। दोनों ही लिमिट्स तुहाडीआं की होण, इनफिनाइट होण। देखो फिनाइट दे विच तां फिक्स सीगा कि दोनों ही लिमिट्स फिनाइट होणगियां, ठीक है। बट इनफिनाइट दे विच की है? एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 दा मतलब हो सकता है दोनों ही लिमिट्स इनफिनाइट होण, हो सकता है तुहाडे कोल 1 लिमिट की होवे फिनाइट होवे और 1 लिमिट की होवे इनफिनाइट होवे, ठीक है जी। एक केस बनते हैं अपने कोल 1 लिमिट फिनाइट हो सकती है, 1 की हो सकती है इनफिनाइट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो तीसरा केस है वो अपना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दोनों ही लिमिट्स इतने की ने इनफिनाइट ने, सो वेरी ईजी कि अपने को सिर्फ इको ही इंटरवल बनता है विच इज़ -इनफिनिटी तो इनफिनिटी। अगर तुसीं इस नूं इन जनरल लिखना चाहते हो तो आप किवें लिखांगे, एक्स मेरे को की है रियल नंबर दे विच बिलोंग करता है, सच दैट मेरे को एक्स की वैल्यू -इनफिनिटी तो लैके कित्थे तक होएगी, इनफिनिटी तक होएगी, क्योंकि अपने को ब्रैकेट ओपन है तो नाल इक्वालिटी नहीं लगेगी, ठीक है। सैकेंड अगर आप गल करिए इस नंबर लाइन के उपर मैम रिप्रजेंट कर दो तो यदि तो जी सारी ही रियल नंबर लाइन बन जाएगी, इनू कोई स्पैसीफिक इदा आप मैंशन नहीं कर सकते, तो सारी नंबर लाइन ही ये रिप्रजेंट कर रहा, ईजी। दूसरा अपने को आ जाता है सैकेंड, तुसीं देख पा रहे हो इत्थे सैकेंड मेरे को है 1 फिनाइट एंड 1 इनफिनाइट। हुण 1 फिनाइट एंड 1 इनफिनाइट दे विच अगे दो केसिस बन जाते हैं, ठीक है जी। 1 फिनाइट और 1 इनफिनाइट दे विच अगे दो केसिस बन जाते हैं। एक केस की बन जाता है, हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ 2 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है। हुण ए वाला तो ओपन भी हो सकता है, ए वाला ब्रैकेट क्लोज भी हो सकता है, तो ये थोड़े को 2 पॉसिबिलिटीज बन सकदियां ने कि थोड़े को जिहड़ा फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट नंबर है उस वाल ओपन ब्रैकेट भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ अ रियल नंबर। बट इनफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। सिमिलरली ये अगे दो केसिस बन जाते हैं, किहड़े बन जाते हैं कि हो सकता तुहाडे कोल -इनफिनिटी तो लैके 3 तक होवे जिहदे विच 3 इनकलूडेड नहीं हैगा, हो सकता तुहाडे कोल -इनफिनिटी तो लैके 3 तक होवे जिहदे विच 3 इनकलूडेड हैगा। नंबर लाइन दे विच आई डोंट थिंक सो रिप्रजेंट करने की लोड़ है, बहुत ही सिंपल जी चीज़ है। इन्हू नंबर लाइन के उपर रिप्रजेंट करोगे तो मेरे को कितना बनेगा, 2 तो लैके अप टू इनफिनिटी, तो यह सारा ही पार्ट आ जाएगा। अगर 2 नूं इनकलूड नहीं कर रहे मतलब ओपन ब्रैकेट है तो इदा आएगा, अगर इनकलूड कर रहे हो क्लोज ब्रैकेट है तो इदा आएगा, सिंपल, ठीक है। तो कुछ भी ये डिफिकल्ट है नहीं, सब कुछ आपां नूं ऑलरेडी आंदा है। आगे चलते हैं। ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਚ ਦੇਤਾ, ਐਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ x greater than 2 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣੇਗਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, मतलब x इज अ वैल्यू जो 2 तो ग्रेटर है, 2 तो ग्रेटर है मतलब 2 तो लेके इनफिनिटी तक जाएगा ना, और उसके विच इक्वालिटी है नहीं तो इक्वालिटी लेके नहीं चलांगे। अच्छा, अगर इक्वालिटी दे देन फिर तो कुछ नहीं जी, बस जिथे ओपन ब्रैकेट सीगा उत्थे क्लोज ब्रैकेट लग जाने, तो इक्वालिटी दे विच किहड़ा कुछ मुश्किल है। अगर यही चीज़ मैम लैस दैन दे लई होवे फिर तो कुछ नहीं, तो आपां इत्थे की लैके चलांगे -इनफिनिटी तो 2 लैके चलांगे, क्योंकि इत्थे सारियां वैल्यूज 2 तो छोटियां ने, ठीक है। अगर अपन कह दिता गया कि x लैस दैन इक्वल टू 2 है, फिर दैन अपने को की होएगा -इनफिनिटी तो 2 और 2 दे वाल की होएगा क्लोज ब्रैकेट होएगा, ठीक है। तो इदा अपन रिप्रजेंट करना आना चाहिए जेकर अपन एक्स की फॉर्म के वैल्यूज दित्तियां हुई ने उन्होंने इंटरवल की फॉर्म के, ठीक है। अगर अपन कह दें कि मेरे को कोई नंबर है जो 2 तो लैके, हियर इज अ नंबर जो 2 तो लैके 7 तक है, तो फिर की करिए तो अपने को इंटरवल बनेगा 2 तो लैके 7 तक, इस तरीके नाल इंटरवल बनेगा। अगर मैम ना एक दे विच इक्वालिटी आ गई, दूसरे दे विच इक्वालिटी नहीं आई, तो जिधर इक्वालिटी हैगी है उधर ब्रैकेट की हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर यही इक्वालिटी मेरे को 2 वाल हुंदी तो मेरे को जो ब्रैकेट सी वो किधर क्लोज हो जाना सीगा, 2 वाल क्लोज हो जाना सी। अगर दोनों दे विच ही इक्वालिटी है तो मेरे को जिहड़ा नंबर है उसनूं आपां किवें रिप्रजेंट करते हैं, 2 तो लेके 7 तक लाइक दिस रिप्रजेंट करते हैं। और ये सारियां चीज़ां बिल्कुल ही बेसिक जिहियां चीज़ां ने, अगर तुहानूं इहदे विच कोई भी डाउट है तो इन्हां चीज़ां नूं क्लीयर कर लो, और ये आपां नूं आणियां चाहीदियां ने, ठीक है जी। सिर्फ इन्ना ही नहीं हो सकता तुहानूं इस टाइप के क्वेश्चन दे देन कि तुहाडे कोल हैगा जी x ग्रेटर दैन 4 एंड x लैस दैन 7, तो इत्थे हुण आपां की करिए, तो इत्थे आपां नूं पता होना चाहिए जेकर तुसीं इस चीज़ नूं देख पा रहे हो कि कोई नंबर 4 तो वड्डा है तो 7 तो छोटा है, तो ये काफ़ी ईजी है। जेकर तुसीं इस चीज़ नूं विजुअलाइज कर पा रहे हो कि मेरे को इंटरवल ए वाला बनेगा, नहीं देख पा रहे कोई गल नहीं, इन्हां दे इंटरवल लिख लो। इहदा इंटरवल लिखना आंदा है, हाँ जी आंदा है। की इंटरवल बनेगा
4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਫਰਸਟ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਕਾਮਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਾਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ 7 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਔਰ 7 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਗਿਆ? 4 ਤੋਂ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਡ ਬਾਰੇ। ਮੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, इस वे दे नाल अपने को इसका ग्राफ जो है नजर आता है। ठीक है, सिंपल क्लियर। तो कोई भी नंबर है लाइक मैं -3 है, -3 का मोड कर रही हाँ, तो क्योंकि यह नंबर 0 तो छोटा है तो मैं इस फंक्शन के वैल्यू पुट करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा -3। दो बारी माइनस होने करके 3 हो जाता है, जिहदे करके आप कहने हैं कि मोड के विच तुहाडे कोल चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू आंसर पॉजिटिव आएगा, यही एक रीजन होंदा है ना। चलो तो अगे डिस्कस करते हैं हुण। नैक्सट अगर आप गल करिए कुछ चीज़ा जो आपको मोड की फॉर्म के पता होनी चाहिए ने। सब तो पहला रिजल्ट कह लो, वैल्यू कह लो, जो कुछ भी, कि किसी भी अगर तुसी मोड की वैल्यू लैने हो तो वह अपने कोल की हुंदी है। अगर अपने कोल, हाँ जी वेट फॉर 1 मिनट, इसमें थोड़ा सही करिए। जेकर अपने को मोड ऑफ एक्स जो है वो अपने को किसी इक्वल है, वो अपने को समथिंग कुछ वैल्यू विच इज़ एल लैट कर लो, एल दे इक्वल है, तो यदा मतलब की होएगा? यदा मतलब एक्स दी दो वैल्यूज होणगियां, एक प्लस एल होएगी एक माइनस एल होएगी। यदा रीजन देखो ध्यान नाल, जेकर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करदा, मान लो मैंने दिता होया मोड एक्स की वैल्यू 2 है, तो मोड एक्स की वैल्यू 2 कदों आऊगी? जेकर मेरे को एक्स की वैल्यू 2 है तो भी मेरे को मोड एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, मतलब मोड दे विच 2 कितना हुंदा है? 2 हुंदा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 पुट कर रही हाँ तो भी मेरे को की है आंसर 2 ही आ रहा है। तो मतलब जेकर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करा जो -2 पुट करा तो मेरे को आंसर सेम आ रहा है। इट मीनस ये 2 रूट्स हो गए। तो कहने का मतलब की हो गया, इस इक्वेशन दे विच तुहाडे कोल जेकर कोई मोड दे विच वैल्यू दी है तो इसका मतलब तुहाडे कोल एक्स दी 2 वैल्यूज होणगियां, उसनूं सिर्फ पॉजिटिव लिखना सही नहीं होगा, उस दे विच अपने कोल दोनों ही साइन दे विच वैल्यूज आणगियां। ठीक है, सैकेंड अपने को इस दे विच यह रिजल्ट है कि जेकर बाय चांस तुहानूं कह दिंदे ने इहदी इक्वालिटी हो गई। ठीक है, बट जेकर तुहानूं कह दिंदे ने कि जेकर मेरे को की है मोड ऑफ एक्स जो है वो किसी वैल्यू तो लैस दैन है, तो इसनूं आपां किवें ओपन करते होने हैं? इसनूं आपां ओपन करते होने -l l x। ठीक है, और तुसी ये भी कह सकते हो कि जिहड़ी मेरी एक्स की वैल्यू है वो मेरे को -l तो लेके l तक बिलोंग करती है। मतलब की हो गया? मतलब ये हो गया कि जेकर मैं तुहानूं कहां कि मेरे को की है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 तो छोटी है, तो इसका मतलब की हो गया कि जिहड़ी मेरे को वैल्यू है वो मेरे को -2 तो लैके 2 दे विच होएगी। ठीक है जी, इसे वैल्यू मेरे को -2 तो 2 दे विच होएगी। ठीक है, अगर इत्थे इक्वालिटी है तो नाल इक्वालिटी आ जाएगी, अगर इत्थे इनक्वालिटी है तो इत्थे थर्ड है अगर आपां नूं दित्ती होवे इन इक्वालिटी नाल। ठीक है, मतलब थानू दे दिता कि मोड ऑफ एक्स जो है दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू एल, तो कुछ नहीं बस सेम होएगा। सेम किमें होएगा? अपने को नाल इत्थे की आ जाएगी? इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, वैसे ये नोटेशन थानू याद होनी है बट बेसिक ने इन्हें दसनियाँ जरूरी ने, कई बार कन्फ्यूजन जो है वो हो जाती है, तो इसका इंटरवल भी अपने को ए वाला होएगा। ठीक है, फोर्थ अपने को अगर यही चीज़ ग्रेटर दैन दे विच होवे, फिर अगर यही चीज़ ग्रेटर दैन दे विच होवे तो यह इंटरवल किवें ओपन हुंदा है? ये हमेशा ओपन हुंदा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो -l तो भी छोटी है। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू है वो l तो की है ग्रेटर है। ठीक है, मतलब इस तरीके नाल ओपन हुंदी है ये वैल्यू, और नाल हुंदा है और। ठीक है, तो मतलब इसका जेकर तुसीं नंबर लाइन के उपर ड्रॉ करोगे तो ये मेरे को है l -l,
ठीक है जी। ए मेरे को है L, तो मतलब ये इधर वाल नू जाएगा, इधर वाल नू जाएगा, और दोनों दे यूनियन वाला पार्ट हुंदा, मतलब इस पार्ट नू छड्ड के। जो तुसी लेस दैन दी गल करदे हो तो सिर्फ यही पार्ट इंक्लूडेड हुंदा, बाकी सारा पार्ट नहीं इंक्लूडेड हुंदा। था ठीक है जी। दोबारा लिख दिंदी मैं नेक्स्ट पेज के उपर कि जो भी तुसी इसनू ओपन करते हो मोड ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर दैन L, इसनू किवें ओपन करते हो, इसनू ओपन करते हो एक्स जो है वो -L तो भी छोटा होएगा और L तो ग्रेटर होएगा। ठीक है। अगर इसनू इंटरवल दे विच लिखना है तो तुसी किवें लिखोगे, आपां लिखांगे -इनफिनिटी तो -L यूनियन L टू इनफिनिटी। अगर यही चीज़ तुहाडे कोल आ जाती है इक्वालिटी दे विच, इक्वालिटी नाल आ जाती है, कहने का मतलब तो फर्क कुछ नहीं है, सारा कुछ सेम होएगा, बस नाल की हो जाएगी इक्वालिटी हो जाएगी। और इसनू इंटरवल की फॉर्म दे विच किदां लिखा जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि इनफिनिटी के उपर कदे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, तो सिर्फ अपने को L के उपर ही क्लोज ब्रैकेट होएगा। ठीक है। हुण एक इस फॉर्मैट दे विच भी हुंदा है कि कुछ ना कुछ नंबर तुहानू दे दिंदे ने, उस नंबर नू लिख दिता जाता है, तो तुसीं इदां मान लो कि ये सारा दा सारा आपां ने पिछे प्रॉपर्टी पढ़ी सी कि इनू आपां किवें ओपन करना है, इनू आपां कुछ इस तरीके नाल ओपन करना है। यही प्रॉपर्टी पढ़ के आए सी, बट विचकार तो अपने कोल ओनली एक्स होना चाहिए, तो आपां ने की कीता, हर जगह ते ए नू ऐड कर दिता। हर जगह ते ए नू ऐड करांगे तो कितना बन जाएगा, a - L एक्स a + L। तो इसनू आपां कई स्टूडेंट इदां ही याद रख लेंदे ने, अगर इदां नहीं याद रहिंदा तो यही चीज़ याद रख लो, बस उस तो बाद जो भी तुहाडे कोल एडिशन दे विच या सबट्रैक्शन दे विच है उसनू ऐड कर दो। अगर ये तुहाडे कोल इक्वालिटी दे विच आ जांदा तो फर्क कोई नहीं हैगा, जिवें कि हुण तुसीं समझ ही गए होंगे कि बस नाल की लग जाएगा, इक्वल टू दा साइन लग जाएगा। तो मेरे को कितना बन जाएगा x - a, ठीक है जी, लेस दैन इक्वल टू -L एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू L, मतलब a - L लेस दैन इक्वल टू x ग्रेटर दैन L + a। ठीक है। और इसनू अगर तुसी इंटरवल दे विच लिखना है तो इंटरवल दे विच किदां लिखोगे, a - L तो लैके a + L तक दियां सारियां वैल्यूज दे विच होणगियां। सिमिलर चीज़ अगर तुहाडे कोल ग्रेटर दैन दे विच है, मतलब यही वैल्यू तुहानू कह दिंदे ने ग्रेटर दैन L है, दैन इसनू किवें ओपन करना है, देखो आपां किवें ओपन करदे सी x - a। ठीक है। ए मेरे कोल की होएगा, लेस दैन होएगा किदे तो -L तो ए मेरे कोल की है -L तो लेस दैन है, और x - a ए मेरे कोल की है ग्रेटर दैन है पॉजिटिव L तो कहने का मतलब की हो गया x लेस दैन हो गया a - L तो, और x जो है वो ग्रेटर दैन हो गया L + a तो तुसी ये भी कह सकते हो कि इस तरीके नाल भी माइंड च रखना है तो इधर रख लो, इधर रख लो, ये ऑलरेडी डिस्कस कीतियां हुई हैं, बस हुण इत्थे विच जो है कई बारी वैल्यू आपां नूं चेंज करके दे दिंदे ने। ठीक है। तो इहदा इंटरवल मेरे कोल की होएगा, इहदा इंटरवल होएगा -इनफिनिटी तो a - L यूनियन a + L टू इनफिनिटी। अगर नाल इक्वालिटी आ जाती है तो मैं हुण इत्थे ही ऐड कर रही हूँ, अगर नाल इक्वालिटी आ जाती है तो हर जगह ते की होएगी, इक्वालिटी होएगी, कोई भी फर्क इस दे विच नहीं हैगा, बस इत्थे की हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर गल की जाए नेक्स्ट अपने को कुछ रिजल्ट ने, ठीक है, और कुछ रिजल्ट अपने को वैसे तो उसनू एज अ रिजल्ट तुम याद रखते हो तो भी ठीक है, बट इसनू आप वेवी कप के नाल सॉल्व करते होंगे क्वेश्चनस नू, तो हैल्पफुल होंगे ने अपने लिए, वेवी कप यूजफुल है। ठीक है। तो हुण ये देखो मेरे को कितना इसनू सॉल्व करते हैं। उस तो पहला थोड़े जे रिजल्ट अपने को ये ने कि मान लो कोई एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर तो स्मॉल है, तो जेकर तुसी इस नंबर के विच कुछ भी ऐड करोगे तो सेम नंबर उधर ऐड करोगे तो तुहाडे कोल कोई भी चेंज नहीं आऊगा, ये भी स्मॉल ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे लै रही हूँ, मैंने पता है कि जो 2 है वो 5 तो छोटा है, मैं दोनों में एक पर्टिकुलर नंबर नू ऐड कर दिता 10, मैं इधर भी 10 ऐड कर दिता और मैं इधर भी 10 ऐड कर दिता, तो इत्थे मेरे को कितना बन गया 12, इत्थे मेरे को कितना बन गया 15। तो रिजल्ट तो गलत नहीं है, रिजल्ट तो हाले भी ट्रू है। ठीक है। तो अपने को इन जनरल ये रिजल्ट होंदा है कि तुसीं कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तुहाडे कोल रिजल्ट की रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों टाइम के उपर। ठीक है। इस तो अलावा अपने को एक रिजल्ट ये भी है कि अगर मेरे को कोई एक नंबर दूसरे नंबर तो छोटा है, हुण तुसीं कहोगे मैम ऐड वाला दस दिता, माइनस वाला दस दिता, मल्टीप्लाई ते डिवीजन, तो मल्टीप्लाई ते डिवीजन नाल भी कोई फर्क नहीं पैंदा, आपां कल्ली मल्टीप्लाई वाला कर लैंदे आ, डिवीजन उसनूं आपां 1/, करके कर लैंदे आ, सेम ही गल हुंदी है ना। तो अपने को कितना बन जाएगा, अपने को जेकर मैं इत्थे सी नाल मल्टीप्लाई कर रही हाँ तो मेरे को चेंज कुछ भी नहीं होगा, मेरे को सेम ही आंसर रहेगा। सी की वैल्यू मेरे को की होएगी फॉर ऑल सी रियल नंबर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 जो है वो 5 तो छोटा है, मैंने इधर भी 10 के नाल मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी मैंने 10 के नाल मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे को कितना बन गया 20, मेरे को कितना बन गया 50। तो रिजल्ट के विच चेंज नहीं आया, सेम ही रिजल्ट है। हुण तुसीं कहोगे मैम डिवाइड, तो डिवाइड भी करके देख लो, 2 लेस देन है 5 तो। ठीक है जी।
अगर मैंने इधर भी 10 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दी और इधर भी 10 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दी, मेरे को कितना बन गया 1/5 बन गया, और इधर मेरे को कितना 1/2 बन गया। तो तुसी आप ही समझदार हो कि यह भी बिल्कुल की है ट्रू है, तो कोई फर्क नहीं पैंदा, सेम रिजल्ट रहिंदा है। फर्क पैंदा कित्थे है, जेकर तुहाडे कोल जिहड़ा सी है वो नैगेटिव होवे, ठीक है। जो आप पिछे रिजल्ट करके आए हैं ये सिर्फ ता ही पॉसीबल है जेकर सी तुहाडा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर दैन 0 है। अगर तुहाडा सी नैगेटिव है, मतलब मैं इत्थे किसी वैल्यू दे नाल मल्टीप्लाई की और वो जो नंबर है वो नंबर मेरे को की है नैगेटिव है, सी नैगेटिव है, तो मेरे को जो साइन है वो ग्रेटर दैन दा चेंज होकर की हो जाएगा लैस दैन दा हो जाएगा। किवें हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो मेरे को 5 तो छोटा है, मैंने हुण इत्थे मल्टीप्लाई की -10 दे नाल, नैगेटिव नंबर दे नाल, तो मेरे को कितना हो गया जी 2 × -10, तो इत्थे भी मेरे को कितना हो गया 5 × -10 हो गया, तो मेरे को बन गया -20, इत्थे मेरे को बन गया -50। हुण तुसीं आप समझदार हो कि किहड़ा नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है, नैगेटिव दे विच जो छोटा हुंदा वही ग्रेटर हुंदा, ठीक है। तो जो तुसीं माइनस दे नाल मल्टीप्लाई करदे हो, मतलब माइनस वाले किसी नंबर दे नाल नैगेटिव नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करदे हो, तो तुहाडा ग्रेटर दैन लैस दैन दे विच चेंज हो जांदा है, और तुहाडा लैस दैन किहदे विच चेंज हो जांदा है, ग्रेटर दैन दे विच चेंज हो जांदा है, ठीक है। तो ये तो सी सारी बेसिक जी इन्फॉर्मेशन। हुण आपां करन लगे वेवी कर्व, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिहदे ही क्वेश्चंस जिहदी हेल्प नाल ही आपां क्वेश्चंस नूं की करते हैं सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेबी कर्व मेथड, ठीक है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बेबी कर्व मैथड, ये मैथड मेरे अकॉर्डिंग जेकर तुसीं पहला तैयारी की तो आंदा होएगा, नहीं आंदा होएगा तो हुण प्रॉपरली आपां समझ लेना इसनूं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल दे विच डिस्कस करांगी हर कोई टॉपिक की तरह। तो जिवें इहदे विच फर्स्ट देखो, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लईए स्पैसीफिकली, जिवें आपां नूं पता है कि आपां पिछे एग्जाम्पल्स लैके आए हैं कि मेरे को की है एक्स कोई नंबर जो है वो 2 तो ग्रेटर हो सकता है, मेरे को हो सकता है 2 तो इदा हो, ठीक है, लैस हो सकता है, ਜਾਂ हो सकता है मेरे तो इदा मैनू गिवन हो। तो यदा मतलब की बन गया, यदा मतलब बन गया एक्स मेरे को जो नंबर है वो 2 तो लैके इनफिनिटी तक है। ए मेरे को की बन गया एक्स मेरे को जो नंबर है वो 2 तो लैके इनफिनिटी तक है। ए मेरे को की बन गया एक्स मेरे को जो नंबर है वो -इनफिनिटी तो 2 तक है, और ए मेरे को की बन गया एक्स मेरे को जो नंबर है वो -इनफिनिटी तो 2 तक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनदियां ने। जो भी तुसी बेबी कर्व बनानी है, हुण लेट कर लो मैंने x = 2 दी, मेरे को 4 नहीं गियां, ये सब तो पहले तो मैं इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लिख ली विच इज़ x = 2, मेरे को एक x की वैल्यू आ गई विच इज़ 2, ठीक है। पहली गल तो बेबी कर्व बनती किवें, बेबी कर्व मेरे को है जिवें मेरे को नंबर लाइन है, जिवें कि आपने पिछे कढ़िया मेरे को x = 2 आया से, तो इत्थे मेरे को समथिंग कुछ 2 होएगा। पहली गल तो मैंने जो भी मैंने इक्वेशनस गिवन ने उत्थों मैंने वैल्यूज़ कढ़ लैनियां ने, उत्थों मैंने वैल्यूज़ कढ़ के हमेशा मैंने कित्थों स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम राइट, ठीक है जी, क्योंकि अपने 99% क्वेश्चन ये आराम नाल हो जाते हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, टेंशन वाली कोई गल है नहीं। तो अपने को की है स्टार्ट फ्रॉम राइट, मैंने राइट तो स्टार्ट किए हुए इसनूं की है इदा करके बनाया। तो ये मेरे को स्टार्ट कितों करना है, पॉजिटिव तो, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो इदा साइंस नूं लैके चलना होंदा है। एक एग्जाम्पल लैने प्रॉपरली समझ आ जाऊगा। लैट मैनू की दिता होया x - 1 x + 2 > 0, ठीक है, x - 1 x + 2 > 0। मैंने कहते फाइंड आउट करो कि x बिलोंग किहदे विच करदा होगा। तो देखो हुण इनू करना किवें है, देखो कुछ तो स्टूडेंट्स इसनूं इन जनरल याद रख लेंदे हैं कि इसकी वैल्यू ये तो ग्रेटर होगी, ये तो वैल्यू इसकी वैल्यू ये तो लैस होगी, ठीक है। कुछ इसनूं की है एज बेबी कर्व इसनूं सॉल्व करते हैं। तो सब तो पहली गल तो मैंने इत्थे एक्स दी वैल्यूज़ कढ़ लियां। इस फैक्टर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू रख के 1 आ जाएगी। इस फैक्टर तो इक्वल टू 0 रख के मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। सो मैंने की किया, एक नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन के इत्थे मेरे को कितना होएगा 1 होएगा, इत्थे मेरे को कितना होएगा -2 होएगा। पोजीशन सही लेनी है, -2 पहला आंदा तो -2 पहला ही लेना है। अगर 1 बाद विच आंदा तो 1 बाद विच ही लेना है, ठीक है। तो हुण आपां ने की है हमेशा स्टार्टिंग करनी है राइट तो, ठीक है। इत्थों आपां की जावांगे नीचे जावांगे, इत्थों ऊपर जावांगे, मतलब जिथे जिथे तुहाडे पॉइंट्स है उत्थों उत्थों जो है अपनी पोजीशन जो है बेबी कर्व दी चेंज कर दे। पहले ऊपर सी 1 तो बाद नीचे, नीचे 2 तो बाद ऊपर, इदा, ठीक है। तो हुण इत्थे मैंने किया प्लस, ठीक है जी। इस सैक्शन दे विच माइनस, इस सैक्शन दे विच प्लस, क्योंकि मैंने किहदियां वैल्यूज़ देखनियां ने, मैंने ग्रेटर दैन दियां वैल्यूज़ देखनियां ने। अगर मैंने ग्रेटर दैन दियां वैल्यूज़ देखनियां ने तो मैं किहड़ा एरिया देखूंगी, मैं पॉजिटिव वाला एरिया देखूंगी। पॉजिटिव वाला एरिया का मतलब की हो गया कि मेरा जो एक्स है वह बिलोंग करता होएगा 1 तो लैके इधर वाल नूं की होएगी इनफिनिटी होएगी, ठीक है। और इत्थे की है -2 तो लैके इधर नूं की होएगा -इनफिनिटी। तो मतलब मेरा एक्स जो है वो -इनफिनिटी तो -2, क्योंकि नाल इक्वालिटी नहीं हैगी तो इत्थे भी इक्वालिटी नहीं हैगी, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। सो
ये चीज़ आ गई मेरे को, ठीक है। एंड इस तो बाद यूनियन, ठीक है, 1 to इनफिनिटी। इस तरीके नाल मेरा जो सीधा सीधा आंसर आ गया, ये आंसर मेरे को की है कि मेरा इंटरवल ए वाला बनता है। अगर यही वैल्यू मैंने सेम फैक्टर दे देंगे x-1 x+2 और ये मैंने कह देंगे लेस दैन, तो आप सिर्फ तो सिर्फ लेस दैन का मतलब नेगेटिव, आप सिर्फ नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे, दैन इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को की होना सी, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को होना सी सिर्फ ए वाला पोर्शन। तो सिर्फ ए वाला पोर्शन की है, ए वाला पोर्शन है -2 तो 1, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाना सी, सिंपल, ठीक है। तो इन जनरल पहले हम जेकर इन जनरल लिखिए तो भी आप बेबी कप की हेल्प नाल ही लिखांगे, ठीक है। तो कितना ईजी है क्वेश्चनस नू कर पाना। जिमें कि मान लो मैनू कोई भी दो फैक्टर्स दे दिते, x माइनस अल्फा दे दिता, x माइनस बीटा दे दिता। हुण यह मेरे को जेकर मेरे को लैस दैन 0 है तो सब तो पहला तो मैं इन्हां दी वैल्यूज़ कढूंगी, तो एक वैल्यू मेरे को अल्फा आ जाएगी, एक वैल्यू मेरे को बीटा आ जाएगी। तो इसनूं जेकर तुसीं बेबी कप की हेल्प नाल करोगे तो मेरे को इत्थे कितना आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। तो मैंने हमेशा राइट तो स्टार्ट करना है और इदा करते हुए बेबी कप बनानी है। इत्थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लैस दैन है तो मैंने की लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। मतलब सीधा सीधा इसका रिजल्ट की बनता है, सीधा सीधा इसका रिजल्ट की बनता है कि मेरे को जो इंटरवल है वो कुछ इस फॉर्मैट दे विच होएगा। जां तुसीं ये भी कह सकते हो कि जिहड़ा मेरे को एक्स है वो मेरे को इस फॉर्मैट दे विच रिप्रजेंट होएगा। अगर यही चीज़ मेरे को ग्रेटर दैन दे लई हुंदी, ठीक है, नाल चलो इक्वालिटी हुंदी, पहला इक्वालिटी वाला कर लैंदे आ कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लैस दैन इक्वल टू 0 हुंदा, तो उत्थे आपां की करदे, कुछ नहीं, बस मेरे को नाल इक्वालिटी आ जाती, नंबरस इंक्लूड हो जाते, तो मेरे को कुछ इस फॉर्मैट दे विच आंसर बन जाता। सिंपल, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, क्लीयर है। हुण ग्रेटर दैन वाला भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल की हेल्प के नाल। हुण कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, तो जिहदे नाल तुहानूं होर चीज़ां क्लीयर होणगियां। हुण तुहाडे माइंड 'च आ रहा होना कि 2 नहीं 3 इंटरवल भी हो सकते हैं, तो उदों असीं की करना है, सारा कुछ सेम है, कोई भी चेंज नहीं हैगा। अगर मैनू 3 इंटरवल्स दे देंगे ने 2x-1, ठीक है जी, और x माइनस 3, 3 इंटरवल्स देते, क्या दिता ग्रेटर दैन 0 है, तो करो फाइंड आउट। तो हुण आपां ने एक नंबर लाइन बनाई, उस नंबर लाइन बनाने तो पहला मैंने x दी वैल्यूज कढ़ियां। पहले इंटरवल तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, दूजे इंटरवल तो मेरे को x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, और तीजे इंटरवल तो मेरे को x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो सब तो पहला तो -1 होएगा, इत्थे -1 होएगा, इत्थे मेरे को 1/2 होएगा और इत्थे मेरे को 3 होएगा, प्रॉपरली लैनी है वैल्यूज, ठीक है। तो हुण क्योंकि अपने को की है पॉजिटिव नेगेटिव, आप राइट तो शुरू करना है लाइक दिस, मेरे को की होएगा ये इदा वैल्यूज जान गया। तो ये वैल्यू मेरे को की है पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरे को इंटरवल बन गया, ठीक है। तो हुण देखो ध्यान नाल, हुण मेरे को की आंसर आ गया। इन्होंने क्या से ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 मतलब मैंने ओवरियां वैल्यूज लैनियां जिहड़े पोर्शन दे विच मेरा आंसर की आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सो वेयर इज अवर हाईलाइटर, हाईलाइटर हाईलाइट कर देगा हुण सिर्फ उस पोर्शन नूं जिथे अपना वैल्यू की आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो इस अकॉर्डिंग जिहड़ा मेरा आंसर है वो आंसर की हो गया, वो आंसर मेरा हो गया कि x जो है वो बिलोंग करता है एक इस इंटरवल दे विच, क्योंकि इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी लैनी भी नहीं हैगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और इक्वालिटी नहीं लैनी तो सीधी जी गल है, एक इंटरवल मेरे को केड़ा बन गया 1 तो लेके 1/2 वाला, -1 तो लेके 1/2 वाला बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर दैन की गल कर रहे हैं। तो एक्स मेरे को कितना बन गया -1 तो लेके 1/2 तक का एक इंटरवल बन गया। बट डोंट फॉरगेट कि एक होर इंटरवल बन रहा है, वो केड़ा बन रहा है 3 तो लेके अगे तक नू जा रहा है, विच इज इनफिनिटी। 3 तो लेके इनफिनिटी तक नू जा रहा है, तो मतलब मेरे को की होगी यूनियन होगी, यूनियन मेरे को बन गया 3 तो लेके इनफिनिटी। क्योंकि इक्वालिटी नहीं हैगी तो इक्वालिटी नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है इस गल का। सिंपल कितना ईजी है क्वेश्चन को करना। एक होर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस तो इलावा जिमें जिमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं उवें टाइप्स डिस्कस हो रही ने, 3 टाइप डिस्कस हो चुकी ने, एक दिता होया 2 दिते हुए ने 3 दिते हुए ने, है ना। हुण जेकर तुहानूं कुछ इस फॉर्मैट दे विच क्वेश्चन आंदा है लाइक x स्क्वायर -4 ग्रेटर दैन 0, तो हुण सानूं पता है कि असीं की करना। चलो इत्थे नाल इक्वल टू लै लो, सारे कल्ले लैजर वाले नहीं होणगे, इक्वलिटी वाला भी लै लैने कोई। तो इत्थे मैनूं पता है कि 3 फैक्टर्स बन रहे ने x -2 x+2 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हुण ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पहला वाले क्वेश्चन के नाल दा बन गया। तो इत्थों सब तो पहला तो मैंने की कीतियां x दी वैल्यूज़ नूं फाइंड आउट किया। x दी किहड़ियां वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। फिर मैंने की किया नंबर लाइन नूं ड्रॉ किया, इत्थे 0 होएगा, इत्थे -2 होएगा, इत्थे 2 होएगा। उस तो बाद मैंने की किया बेबी कर्व नूं ड्रॉ किया, जो कि राइट तो शुरू करना हमेशा लाइक दिस, ठीक है जी।
और जिथे जिथे बस इदा जाते जाओ। ये मेरे को पॉजिटिव है, ये मेरे को नेगेटिव है, ये मेरे को पॉजिटिव है, ये मेरे को नेगेटिव है। हुण यही इमेजिनेशन अपने माइंड च नहीं लैके आनी कि हमेशा नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव ही आऊगा, उपर वाला पॉजिटिव ही आऊगा। और तुसीं जिवें क्वेश्चन हो रहा उदा क्वेश्चन करो, ठीक है। इदा कोई फिक्स ना रखो अपना रूल, ठीक है। इदा का कुछ मैं दस्सिया नहीं है, क्लीयर है। चलो हुण अगर आप गल करिए, इत्थे मेरे को की आ गया, आंसर आ गया। आंसर करके तुसीं हुण लिख दोगे मैंने की कढ़ना सी, ग्रेटर दैन इक्वल टू पॉजिटिव वाला कढ़ना सी। पॉजिटिव वाला मेरे को हाईलाइटर का कलर चेंज करके आप पहले नॉर्मल जिहा लैके आइए, येलो येलो। तो यही एक पोर्शन आ गया और यही एक पोर्शन आ गया, तो इत्थों तुसीं आंसर कट लोगे। तो यह बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इत्थों मेरे को आंसर की बन जूगा, हुण इत्थों मेरे को बन जाएगा, ओके, इत्थों मेरे को बन जाएगा x बिलोंग्स टू ए वाला इंटरवल। हुण इस इंटरवल दे विच 0 भी इंक्लूडेड है जी, 2 भी इंक्लूडेड है। सो इट इज़ लाइक -2 तो 0 यूनियन 2 तो इनफिनिटी, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। क्लीयर है, उम्मीद है क्लीयर होगा प्रॉपरली। एंड इस तो बाद अगर आप गल करिए, दैट्स इट, ठीक है। पहला वर्गा क्वेश्चन बन गया सी, तां फैक्टराइज करके आराम नाल कर सकते हो। एक होर गल, जेकर थोड़े इदा के क्वेश्चन आ जाते हैं कि थानू लगे कि मेरे को कुछ इदा की चीज़ बन गई, तो इत्थे अपनी कलाकारी नहीं चलानी, सेम फॉर्मैट के क्वेश्चन नहीं करना। आपने क्वेश्चन उवें ही करना है, पर ध्यान रखना है कि मेरा जो एक्स है वो मेरे को की होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो बनाओ जी, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, तो बनाओ जी। तो इत्थे मैंने माइनस कॉमन कढ़ लिया, माइनस कॉमन कढ़ के जो उधर लैके जावांगे दैन इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि मेरे को जो साइन है वो चेंज हो जाऊगा। सो इसनू एज इट इज़ सॉल्व नहीं करना, इसनू पहला इस फॉर्मैट के विच लैके आए, फिर उसनू सॉल्व करांगे, आंसर तुहाडा आ जाना है। खुद सॉल्व करियो, होमवर्क है तुहाडा, ठीक है जी। इस तो इलावा होर किहड़ी टाइप बनती है, होर तुहाडे कोल माइंड दे विच आ रहा होना कि डिवाइड वाली टाइप बनती है कि अगर मेरे को डिवाइड दे विच कुछ आ गया, लाइक मेरे को कुछ दिता होया x+1 और 2x -1, डिवाइड दे विच मेरे को एक हैगा x+3। तो इनू भी मैनू कोई टेंशन लैन की लोड़ नहीं है, सेम फॉर्मैट दे विच सारा क्वेश्चन होएगा, सेम फॉर्मैट दे विच सारा क्वेश्चन होएगा। देखो इत्थों मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इत्थे मेरे को एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, इत्थों मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, इत्थों मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। सो उदा ही नंबर लाइन बनावांगे, सब तो पहला मेरे को कितना आएगा -3 आएगा, फिर मेरे को कितना आएगा -1 आएगा, फिर मेरे को कितना आएगा 1/2 आएगा, तो फिर आप बनावांगे बेबी कर्व लाइक दिस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव देखांगे, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव और ग्रेटर दैन 0 है, दैन मैंने सिर्फ ग्रेटर दैन 0 वाला ही पार्ट लेना है विच इज़ पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट मैंने लेना है। हुण इत्थे एक चीज़ नूं ध्यान च रखियो, इत्थे मैं थोड़ा साइन नूं चेंज करके नाल इक्वालिटी ले लैनी आ, हाँ जी। तो इत्थे एक चीज़ नूं ध्यान च रखियो कि मेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट मेरी वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी, -3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेकर मेरी वैल्यू -3 के इक्वल हो जाएगी तो ये सारा का सारा तो नोट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 मतलब इनफिनिटी। सो हुण जी मैं एक्स का मेरा आंसर आऊगा, वो एक्स का आंसर तो उवें ही आऊगा जिवें आपां लैके आने हुंदे आ कि एक्स मेरा किहदे च बिलोंग करदा, एक तो ये इंटरवल हो गया -3 to -1, ठीक है जी, क्योंकि क्लोज्ड है तो क्लोज्ड लेके चलांगे, -3 to -1 यूनियन 1/2 तो इनफिनिटी, सेम हो गया। हुण इत्थे तुसी एक गलती है मेरी, उस गलती नूं तुसी भी नोटिस करना है कि इत्थे मैंने जो -3 है, इत्थे मैंने जो -3 है वो इंक्लूड नहीं करना, इत्थे मैंने सिर्फ तो सिर्फ इत्थे ओपन ब्रैकेट रखना। तुसी कहोगे क्यों ओपन ब्रैकेट रखा है, सारे किते क्लोज है, फिर इत्थे ओपन क्यों रख लिया, क्योंकि मैंने सारियां वैल्यूज़ लैनियां ने, पर मैंने एक्स की वैल्यू -3 नहीं लैनी, क्योंकि जेकर मैंने एक्स की वैल्यू -3 ले ली तो मेरे को मेरा क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाएगा, नोट डिफाइंड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थोड़े को क्वेश्चन जो थोड़े को एग्जाम के आऊगा दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होणगियां, तुसीं उत्थे थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन सारा सेम है, बस तुसीं डिनोमीनेटर नूं चैक कर लो, जिथे तुहाडा डिनोमीनेटर 0 बन रहा है उस पॉइंट नूं कल्ले नूं छड्ड दो, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ईजी सिंपल, ठीक है। चलो इस तो इलावा एक अपने को टाइप बनती है पावर्स वाली मतलब लाइक x-1 की पावर 3 होगी, है ना, x+2 की पावर 4 होगी और x-6 की पावर 1 होगी। तो हुण 1 एज किन्नी भी है ना, चलो इसनूं सॉल्व करना है, तो इसनूं किवें सॉल्व करिए, तो इसनूं सॉल्व एवें करते होंदे ने। देखो तो हुण देखो इत्थों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इत्थों मेरे को x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, इत्थे मेरे को की है x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है जी, -2 आ गई, इत्थों मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सो मेरे को कितना आ गया, मेरे को
मेरे नाल हमेशा ही एवें हुंदा है। चलो इत्थे मेरे कोल कितना आ गया 1 मिनट ओनली। इत्थे मेरे कोल आ गया -2, फिर मेरे कोल आएगा 1 आएगा, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हुण इहदे विच देखो, हुण इहदे विच आपां करांगे किवें, ध्यान नाल देखो। मैंने इत्थे पहला तो नोट किया कि ईवन पावर केड़ी है, दिस इज अ पावर विच इज ईवन। होर मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने बस एवें देखना है कि केड़ी पावर ईवन है, ठीक है। मेरे मतलब जो मेरे को एक्स की वैल्यू -2 आई है उदों मेरे को पावर ईवन है, अदरवाइज ओड है ना, ठीक है। तो मतलब अपने कोल देखो सब तो पहला तो हुण इत्थे वेव कब आएगी, ऐदा जाएगी, ऐदा जाएगी, इस तो बाद इदा नहीं जाती, ये इदा ही जाऊगी। क्यों जी? और इसलिए क्योंकि अपने कोल इस पॉइंट के उपर पावर ईवन है, तो जिस पॉइंट के उपर पावर ईवन है उसके उपर तो कोल जो है वो वेवी कर्व नैगेटिव वाल नूं होने की बजाय जेकर वो नीचे है तो नीचे ही रहेगी, जेकर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी। तो ऊपर वाले सारे की होंगे पॉजिटिव और नीचे वाला की है नेगेटिव। तो थोड़े को इत्थे आंसर की आ गया, तुसी सारे समझदार हो, थोड़े को आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मेरे को आंसर कितना आ गया, मेरे को एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि मैंने की लेना है ग्रेटर दैन 0 वाला पार्ट लेना है, और ग्रेटर दैन 0 वाला पार्ट जो है वो केड़ा बन रहा है, वो ए वाला भी बन रहा है, ए वाला भी बन रहा है और ए वाला भी बन रहा है, ठीक है। सो इन्हों लैके अपने को आंसर आ जाऊगा। एक्स के बिलोंग करता है जी -इनफिनिटी तो -2, इक्वैलिटी नाल हैगी है यूनीयन 2 तो लैके 1, इक्वैलिटी नाल हैगी है यूनीयन 6 टू लैके इनफिनिटी। हुण कुछ आपां इसनूं ऐदां भी लिख सकते हैं, इसनूं ऐदां भी लिख सकते हैं -इनफिनिटी तो 1, क्योंकि इन्हां दोनों दे विच कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हैगा, ठीक है। इत्थे -2 सीगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हैगा, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। यूनीयन 6 टू इनफिनिटी, दिस इज माई आंसर, ठीक है जी। यूनीयन 6 टू इनफिनिटी, इजी, क्लियर। चलो क्लीयर है तो ठीक है, अगे चलते हैं। एक होर एग्जाम्पल ये नाल दी लैने आ, जिवें कि लैट कर लो, मैंने एक होर एग्जाम्पल दी हुई है कि x माइनस 1 दी पावर 4, x प्लस 2 पावर 5, x माइनस 3 पावर 6, ठीक है जी, x प्लस 4 पावर 4 एंड x प्लस 1 पावर 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो इस दे विच सब तो पहला तो वैल्यूज, एक वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 1 आ गई, एक वैल्यू मेरे को आ गई -2, एक मेरे को आ गई 3, एक मेरे को आ गई -4, एक मेरे को आ गई -1। ड्रॉ कर लो। सब तो पहले इधर मेरे को कितना होएगा -4 होएगा, ठीक है जी। उस तो बाद मेरे को कितना होएगा -2 होएगा, ठीक है। फिर मेरे को कितना होएगा -1 होएगा, आफ्टर दैट मेरे को कितना होएगा 1 होएगा, फिर मेरे को होएगा 3। बेबी कर्व बना लो। ईवन पावर कितने है, इत्थे ईवन पावर है, मतलब जो मेरे को एक्स की वैल्यू 1 आई सी उदो ईवन है, ठीक है। जो मेरे को एक्स की वैल्यू -4 आई सी उदो ईवन है, जो मेरे को एक्स की वैल्यू 3 आई सी उदो ईवन है। इन्हां 3 जगह ते मेरी पावर वैल्यू ईवन है। तो जिथे जिथे ईवन है उत्थे उत्थे बेबी कर्व जो है वो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच नहीं जाएगी, उत्थे उत्थे उवें ही रहेगी जिवें वो हैगी है। रुको मैंने कुछ कितना इत्थे गड़बड़, दोबारा बनाने हैं। तो देखो सब तो पहला तो ऊपर आए, क्योंकि इत्थे मेरे को वैल्यू ईवन सी तो ईवन ही रहूगी, ऊपर ही रहेगी। इत्थे भी वैल्यू ईवन सी तो यह चेंज नहीं होगी, इत्थे चेंज होगी, इत्थे चेंज हुई, ये फिर ऊपर वाल चला गया। इत्थे भी वैल्यू ईवन सी तो इन्हें चेंज अपनी डायरेक्शन नहीं होती। तो जो ऊपर वाले से सारे पॉजिटिव ने, नीचे वाले नेगेटिव ने, तो वेरी इजी अपने को आंसर आ जाऊगा, ठीक है जी। क्लीयर है, चलो उम्मीद है क्लीयर होगा, ठीक है। आए सीगे अपने को बेबी कर्व्स नूं किवें यूज़ करना है, ठीक है, किवें उन्हां दे कोल नाल क्वेश्चनस करने ने। ये सारे मैथड्स काफ़ी ज़्यादा की ने इंपोर्टेंट ने, ठीक है। और इत्थे अपनी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो कंप्लीट होंदी है। नैक्सट क्लास दे विच आपां डिस्कस करांगे वैक्टर स्पेस नूं, स्टार्ट करांगे वैक्टर स्पेस नूं, ठीक है जी। तुहानूं क्लास पसंद आई दैन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, अपने फ्रेंड्स दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। एंड कमेंट सैक्शन में जरूर दस्सिओ क्लासेस किद्दां लग रही हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।